Today we will study Essays of Standard 8th, chapter number 1, Awakening Reformers. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय के बारे में स्टडी किया था. नाउ वी विल स्टडी रामकृष्ण परमहंस. Ramakrishna Paramhans was the beacon of Indian culture. He was also a reformer and sant who had sought the truth of all religions. He was born in Kamarpukra village of Hooghly district in Bengal. From childhood, he had interest in religious activities. He was a priest in Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. Many people were drawn to him due to his preaching on sacred character and devotion towards knowledge. He tried to attain God in various forms. Many religious reforms like Keshav Chandra Sen and Dayanand Saraswati and others had obtained guidance from him. The people who had come under the clutch of waste their faith in culture and religion because of Ramakrishna Paramhans. ओके, रामकृष्ण परमहंस जो हमने स्टडी किया कि वो बंगाल में उनका बोर्न हुआ था और वो चाइल्डहुड से ही रिलीजियस एक्टिविटी में उनको इंटरेस्ट था. वो एक प्रिस्ट थे, काली टेम्पल में पुजारी थे. उन्होंने अपने रिलीजियस की तरफ प्रीचिंग किया रिलीजियस के लिए और उनको अपने कल्चर और रिलीजियस में बहुत ज़्यादा फेथ था. ओके, देन है स्वामी विवेकानंद. Bengali graduate named Narendra Dutt came into contact 1863 to 1902 AD with Ramakrishna Paramhans. Ramakrishna satisfied his thirst for knowledge. Narendra became a disciple of Ramakrishna and became a saint, acquiring the name of Swami Vivekananda. He had intensive study about Indian and Western philosophy. ओके, एक बंगाली ग्रेजुएट थे जिनका नाम था नरेंद्र दत्त. उनको बाद में रामकृष्ण परमहंस के साथ में उन्होंने उनके थर्स्ट को सेटिस्फाइड किया. इसके लिए उन्होंने उनको एक संत बने और उनको नाम दिया स्वामी विवेकानंद. उन्होंने बहुत सारी अपनी स्टडी की थी इंडियन और वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में. स्वामी विवेकानंद एडवाइस करते थे पीपल को कि सर्व poor and look for God is needy people. Okay, he created Indian youngster, the pride for our past and awareness for a bright future. He was present at International World Conference for Religious Philosophy and Indian Religious. He propagated Indian culture by touring various countries like United States, Europe, Egypt, China, Japan. He praised of Indian culture and was a staunch nationalist. He gave a greatest slogan to Indian: arise, awake and stop, not still, the goal is achieved. है ना, उठो और जागो और जब तक अपना अचीव नहीं हो, गोल अचीव नहीं हो, तब तक अपने काम में लगे रहो. ये एक बहुत ही पावरफुल स्लोगन दिया था स्वामी विवेकानंद ने यंगस्टर्स को. स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन मठ इन बेलूर इन द ईयर 1897 AD इन द नेम ऑफ हिज गुरु. रामकृष्ण परमहंस उन्होंने मिशन मठ इस्टेब्लिश किया जो कि रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे और उनके नाम के ऊपर उन्होंने इस मठ का नाम दिया जिसको 1897 में उन्होंने बेलूर में इस्टेब्लिश किया. दिस मिशन अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ सर्विंग टू मैन थ्रू वेरियस वर्क्स. द मिशन इम्प्लीमेंटेड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. उन्होंने स्लोगन क्या दिया? सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. By gaining motivation from the life of Ramakrishna Paramhans,
This mission opened various schools nationwide for imparting education, and service was granted to people by opening hospitals. Even now, the branches of this mission are functional in India and abroad. है ना, अभी भी ये जो जितनी भी इनकी मिशंस हैं ये अभी भी इंडिया और अब्रॉड में चल रही है. ओके. रिफॉर्म मूवमेंट इन मुस्लिम सोसाइटी, ये तो हिंदू सोसाइटी के लिए पर रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय सभी ने वर्क किया. बट मुस्लिम सोसाइटी के लिए भी रिफॉर्म्स किए गए. इन ईयर 19th century सोशल एंड रिलीजियस अवेकनिंग was initiated in Muslim society under the leadership of people like Shritullah from Bengal and Sayyid Ahmad Khan from Rai Bareli in Uttar Pradesh. They were motivated by the preaching of religious leader Shah Waliullah from Delhi. They believed that the British could establish their rule in our country as Islamic religion was becoming influenced. They started Wahhabi movement in order to strengthen and Islamic religious and culture and also to make more sacred and pure. है ना, उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी में अवेकनिंग करने के लिए श्रीतुल्ला बंगाल के और सैयद अहमद खान रायबरेली यूपी उत्तर प्रदेश के जो थे उन्होंने अपनी मोटिवेशन स्पीच वगैरह दी. रिलीजियस लीडर थे वहाँ के शाह वलीउल्लाह, है ना, उनको ऐसा उन्होंने ब्रिटिश दे बिलीव्ड कि ब्रिटिश कुड इस्टेब्लिश देयर रूल इन आर कंट्री एज ए इस्लामिक रीजन. उनको क्या था कि ये इस्लामिक रीजन के तौर पर इस्टेब्लिश कर देंगे ब्रिटिशर्स, और उन्होंने वहाबी मूवमेंट करके स्टार्ट किया. किसने किया? सरतुल्ला ने, और रायबरेली से सर सैयद अहमद खान ने. In spite of Wahhabi movement, certain Muslims were influenced by Western culture and thus English education became whispered. Due to the orthodox nature of ulemas, Muslim remained deprived of English education and social gains. That is why the education of Muslim and rise of middle class was not satisfactory. Okay, अब यहाँ पर जैसे जैसे वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ उन्होंने मुस्लिम्स जो थे वो वेस्टर्न कल्चर की ओर झुकने लगे, इंग्लिश एजुकेशन बढ़ने लगा, तो उसके कारण जो उलेमाज वगैरह उनके थे उनको इंग्लिश एजुकेशन और सोशल गेन्स नहीं ठीक लग रहा था. उन जो मिडिल कास्ट मुस्लिम वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था उनको, है ना. सर सैयद अहमद खान वॉज बोर्न इन Umrao family during the revolt of 1857. He was serving the East India Company as employee and had remained loyal towards the company. After his retirement in 1869 AD, he went to England and was influenced by Western broad-mindedness. He pretended to his people to adopt English education and change the orthodox attitude, the step out of the backwardness. He started a magazine named Tehzeeb-ul-Akhlaq in 1870 AD. He established Aligarh Muslim College in 1875 AD, which is known as the Aligarh Muslim University. He translated the book of literature and science in Urdu language and made Muslim familiar with the Western knowledge. He opposed the Wales system, burqa pratha and child marriage and favored education for girls and widow remarriage. सर सैयद अहमद खान ने, जो कि उमराव फैमिली में जिनका बॉर्न हुआ था 1857 में, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत सारा वर्क किया. उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट की जिससे लोगों के माइंड चेंज हुए. उन्होंने मैगज़ीन स्टार्ट की तहज़ीब-उल-अखलाक, इस्टेब्लिश अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज इस्टेब्लिश किया जो अभी यूनिवर्सिटी बन गया है. उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में जो इंग्लिश की बुक्स थी उनको उर्दू में ट्रांसलेटेड किया ताकि मुस्लिम फैमिलियर हो सके उसके साथ. उन्होंने बुरखा प्रथा का अपोज किया, चाइल्ड मैरिज का अपोज किया.
देन इस टाइप से सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किया। सिख सोसाइटी, the reforms of 19th century also influenced the Sikh society to remove the evil that had entered the Gurudwara and also for better management. Sri Mani Gurudwara Prabandhak Samiti was formed. To impart English education along with religious education in Sikh, Khalsa College was established in Amritsar. Many schools were also established. ओके, यहाँ पे खालसा कॉलेज स्टार्ट किया गया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति वॉज फॉर्म्ड हुई। ओके, देन इंग्लिश एजुकेशन के साथ उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन भी सिख को देना स्टार्ट किया। देन पारसी कम्युनिटी, पारसी सोसाइटी, द पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश education established Rahnumaye Mazdurban Sabha in 1851 for social religious reform movement. Dadabhai Nauroji was the leader of the Sabha. This Sabha had started periodically, namely Rasta Goftar. It gave force to the reform movement, carried out work for awakening of Parsis. K.R. Kama and Behramji Malbari also did work for social religious improvement. Kama laid emphasis on propagation of education and Malbari talked about women empowerment in detail. They opposed child marriage and simulated widow remarriage. It was due to the effort of Malbari that the government framed a law about agreeable age for marriage in 1891 AD. पारसी सोसाइटी में जो थे K.R. कामा एंड बहराम जी मलबारी, उन्होंने बहुत सारा वर्क किया जो रहनुमाए मजदूरबंद सभा को इस्टेब्लिश किया, जिसमें दादा भाई नेरोजी लीडर थे। उन्होंने एक सभा स्टार्ट की जिसका नाम रखा रास्ता गोफ्तार। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे सोशल रिलीजियस इम्प्रूवमेंट भी किए। उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया और एक एग्रीएबल एज डिफाइन करी मैरिज के लिए। ज्योतिबा फुले वॉज अ वेल known social reformer of Maharashtra state. He started a girl education in Pune in 1857 AD. He helped the widows to remarry. He challenged the authoritativeness of Brahmins in the society. He established the Satyashodak Samaj in order to inculcate confidence, courage and enthusiasm in people. ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र का वेल नोन नाम है। उन्होंने गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। वो उनको ब्राह्मण्स को जो अपर वो मिला हुआ था उसको उन्होंने उसका अपोज किया और सभी को एक समान माना। उन्होंने सत्य शोधक समाज का स्टैब्लिशमेंट किया और पीपल्स में वो एंथुजियाज्म के लिए जाने जाते थे। देन ठक्कर बापा valuable contribution for the upliftment of untouchables and providing his service for many years as minister of Akhil Hind Harijan Sangh, which was established by गांधी जी ने establish किया था अखिल हिंद हरिजन संघ, जिसमें उन्होंने बहुत दिनों तक काम किया और उन्होंने उसको अपलिफ्टमेंट किया, जिसमें अनटचेबल पीपल्स हरिजन जिसको गांधी जी ने नेम दिया था। His contribution to provide relief to people affected by natural calamities is noteworthy. Amrit Lal Thakkar, namely Thakkar Bapa, was born in 1869 AD in the city of Bhavnagar. ठक्कर बापा का रियल नेम था अमृत लाल ठक्कर, जो भावनगर में 1869 AD में उनका बोर्न हुआ था। He was a dutiful servant throughout his life. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक ड्यूटी करते हुए सर्वेंट के जैसे ड्यूटीफुल उनकी लाइफ रही। He had acquired the degree of engineering. He left his job, for which was really paid good salary, as he started serving the people of Chewada after being influenced by गांधी जी। वो एक डिग्री उनके पास
इंजीनियर थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब, गुड सैलरी होते हुए भी उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड होते हुए उन्होंने सर्विंग द पीपल का काम स्टार्ट किया। ठक्कर बाबा ने पंचमहल भील सेवा मंडल इस्टेब्लिश किया, जो बहुत ज़्यादा जंगल में और हिली रीजन में पंचमहल के जो भील्स रहते थे उन्होंने उनको स्कूल वगैरह, उनके लिए बच्चों के लिए स्कूल वगैरह ओपन करवाए, और जो भील हैबिटेट थे अल्कोहल और अगल एविल कस्टम्स के जो थे कंपेनियन थे, उनको उन्होंने उनसे दूर किया। ही मेड देम स्पिन द व्हील एंड इन्वॉल्व देम इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज। उन्होंने उसको स्पिन द व्हील, सूत काटने के लिए उन्होंने उसको स्टार्ट किया और उसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश की। एज टाइम पास, नेशनल अवेयरनेस एंड अवेकनिंग डेवलपमेंट इन पीपल एंड दे मूव फॉरवर्ड टूवर्ड फ्रीडम मूवमेंट, notable progress was seen in the condition of people was the backward class as Gandhi ji gave importance to removal of untouchability. उन्होंने जैसे जैसे टाइम गया वैसे नेशनल अवेयरनेस और अवेकनिंग डेवलपमेंट की पीपल्स के अंदर और फ्रीडम मूवमेंट की तरफ पीपल्स को समझ में आया और उन्होंने आगे बढ़े। इसी टाइप से जो बैकवर्ड क्लास थे उनको भी अनटचेबिलिटी में से रिमूव कराने के लिए गांधी जी के साथ मिलकर बहुत सारा वर्क किया। अब इस लेसन में हम लोगों ने सारे रिफॉर्मर्स के बारे में स्टडी किया है कि किसने सोसाइटी के रिफॉर्मर्स के तौर पर काम किया। अब यहाँ पर ये लेसन हमारा फिनिश होता है। इस लेसन के थ्रू आपको अब इसका टेस्ट देना होगा। हर एक लेसन फिनिश होगा और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको ये वीडियो मिलेगा, उसके नेक्स्ट डे हमको इसका टेस्ट देना है। ओके, टेस्ट में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट नोट, इस लेसन में से शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स रेडी करना है। ओके, 20 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। अंडरस्टैंड? देन बाय, टेक केयर ऑफ यू।